Hello, my dear students. I'm Devesh Kumar Sharma. I hope all of you are doing fine, staying at home, keeping yourself safe. I'm also in the kind of a situation. So, with my limited resources, I'm preparing some video lectures for you. I hope you will get some knowledge and you will learn the topics which I teach you. I got some study materials from the open source which I am using, so I just want to thank the authors whomsoever have written this. So let us start with this topic. First, we will discuss the introduction of the code generation. Then we will discuss what are the various issues of the code generation. Okay, so what this code generation actually is, suppose that अगर आपसे कोई बोलता है कि ये कोड जनरेशन कहाँ पर फेज में आता है, ओके तो जैसे हम लोगों ने फेजेस ऑफ द कंपाइलर स्टडी किया है, तो फेजेस ऑफ कंपाइलर में ऑल ऑफ यू नो कि इंटरमीडिएट कोड होता है, दैन उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन आता है, दैन उसके बाद कोड जनरेशन आता है. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट कोड ऑप्टिमाइजेशन इज अ काइंड ऑफ अ ऑप्शनल फेज. So after the intermediate code, you might be doing some code optimization or might not be doing the code optimization, and you are reaching to the code generation. What this code generation is a kind of a final phase in the compiler design. Okay, that means in this, if we say we have code optimizer, this code optimizer takes the input from the intermediate code and gives its output to the code generator. That means if we say this code generator takes the intermediate code, because code optimization has been done means nothing has been changed, some optimization techniques will have been used, तो उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आया होगा. सो दैट मीन्स अगर हम सपोज दैट इनपुट की बात करें तो इन द इनपुट फॉर्म कोड जनरेटर कहाँ से इनपुट ले रहा है? कोड जनरेटर इज टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द intermediate code. Okay, so first thing is ki we must have a very correct and we can say very precise intermediate code. And as you can see this, with the code generator takes the intermediate representations produced by code optimizer along with the supplementary information in symbol table of the source program and produce as an output and an equivalent target program. So the important thing is कि इंटरमीडिएट जो कोड है दैट इज द इंटरमीडिएट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एज अ इनपुट ले रहा है, और वो क्या कर रहा है, इट इज गिविंग एज अ आउटपुट एज अ टारगेट प्रोग्राम. ठीक है, अब वो जो कोड जनरेटर जो आउटपुट दे रहा है दैट इज बीन डायरेक्टली स्टोर्ड इन योर मशीन. ओके, दैट मीन्स जो स्टोर हम लोग करने वाले हैं उससे पहले जो कोड जनरेटर वर्क कर रहा है दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, नाउ सी दिस डायग्राम. This diagram shows that you have a front end. You all know that up to the intermediate code we have the front end, then we get the code optimization, and then the intermediate code is given as a input to the code generator, and we are getting the target program as a output. Now सबसे important अगर सपोज दैट आपने बोला कि मुझे कोड जनरेटर डिजाइन करना है किसी कंपाइलर के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 टास्क होते हैं जो किसी एक कोड जनरेटर मीन्स एक गुड कोड जनरेटर को आपको डिजाइन करने के लिए जरूरी होते हैं. दीज 3 टास्क आर, फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, सेकेंड वन इज द रजिस्टर एलोकेशन एंड द असाइनमेंट, एंड थर्ड वन इज द इंस्ट्रक्शन ऑर्डरिंग. दैट मीन्स जो आपने सपोज दैट कोड जनरेट किया है, तो वो जो कोड जनरेट है वो आपका परफेक्टली डिजाइन है सो दैट यू कैन डिजाइन अ टारगेट फ्रॉम प्रोग्राम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जनरेटेड कोड. तो उसको लिए आपको क्या होना चाहिए, ये 3 टास्क आपने परफॉर्म किए, देन ओनली यू कैन गेट अ गुड टारगेट प्रोग्राम. तो सबसे पहला आपका फर्स्ट जो टास्क होता है वो होता है आपका इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन. ठीक है, अब देखो इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन बड़ा ही सिंपल होता है कि अगर सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन मीन्स आई जनरेटेड अ कोड. ठीक है, कोड जनरेट कर लिया. अब कोड जनरेट हुआ दैट मीन्स उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने जनरेट किए. अब वो हम लोग इसमें आगे की अपने टॉपिक्स में देखेंगे कि जैसे एड्रेसिंग मोड्स हैं तो उसमें कितने तरीके के कितने वेरियस फॉर्म्स के उसमें जो है एड्रेस फॉर्म्स उसमें डिज़ाइन होते हैं, फिर हम लोग इंस्ट्रक्शंस कैसे उसमें राइट करते हैं, इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या होती है. बस फिलहाल हमको ये देखना है कि सपोज दैट वी हैव सम इंस्ट्रक्शंस. दिस मीन्स जो हमारे पास इंटरमीडिएट कोड की जो रिप्रेजेंटेशंस हैं या इंटरमीडिएट कोड आया उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं विच
instructions can be best used to डिजाइन अ कोड जनरेटर. ओके, हम लोग उसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं कि हमारे कौन से इंस्ट्रक्शंस हम लोग बेस्ट यूज कर सकते हैं सो दैट हम लोग उसको डिजाइन करने के लिए वर्क कर सकें. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है रजिस्टर एलोकेशन एंड असाइनमेंट. ठीक है. तो इसका सिंपल सा है, डिसाइड व्हाट वैल्यूज टू कीप इन विच रजिस्टर्स. मींस हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे बिकॉज हम लोग यहाँ पे कहाँ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अब डायरेक्टली एक तरह से हम लोग मशीन लैंग्वेज में वर्क करेंगे या आप लोग बोल सकते हो असेंबली लैंग्वेज में वर्क करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर्स, मेमोरी लोकेशंस, इनके टर्म्स में बात करेंगे. दैट मीन्स क्या है कि जो आपके रजिस्टर्स हैं, ठीक है, तो उस रजिस्टर्स में आप लोग कौन सी वैल्यू प्लेस करते हो, कौन से रजिस्टर्स यूज करते हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शन ऑर्डरिंग. थर्ड वन इंस्ट्रक्शन ऑर्डरिंग मीन्स क्या होता है कि सपोज दैट आपने इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर लिए कि भाई ये मेरे इंस्ट्रक्शंस है जिनको मुझे यूज करना है कोड जनरेशन के लिए, ये मेरे रजिस्टर्स हैं, इनमें ये वैल्यूज आएगी. बट वो इंस्ट्रक्शन सपोज इट प्रॉपरली ऑर्डर्ड नहीं है तो आपके लिए वो एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं देगा डिजाइन करने के लिए, किसको, कोड जनरेशन के लिए. ठीक है. दैट मीन्स कोड जनरेशन क्या होता है, कोड जनरेशन टेक्स द input as a intermediate code representation, gives you a target program as an output, and it has to perform three main tasks while we are thinking of designing the code generator. First is instruction selection, second is the register allocation and assignment, and third one is the instruction ordering. Okay, so now after this, suppose that we are in the step of generating the we are in the step of designing a code generator. Okay, what issues a code generator can face. ठीक है. अब हम लोग इस टॉपिक में मूव करते हैं कि कौन कौन से इश्यूज हैं जिसमें कि वो इश्यूज फेस कर सकता है. सपोज दैट वी आर गोइंग टू डिजाइन फॉर इफ वी आर गोइंग टू डिजाइन अ कोड जनरेटर. सो दीज आर द वेरियस इश्यूज which can be faced by the while we are designing a code generator. First is input to the code generator. That means आप कौन सा input दे रहे हो, that will depend upon the first, this is the first issue. Second is the target program. ठीक है, कौन सा टारगेट प्रोग्राम आप डिजाइन करने के लिए इंटेंशनल हो कि आपका कोड जनरेटर किस तरह का टारगेट प्रोग्राम आपको डिजाइन करके देगा. थर्ड वन इज द इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन. आपका इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए. फोर्थ वन इज द रजिस्टर एलोकेशन. रजिस्टर एलोकेशन मीन्स कौन सा कंटेंट आप कौन से रजिस्टर में डाल रहे हो. एंड फिफ्थ वन इज द इवैल्यूएशन ऑर्डर. मीन्स किस ऑर्डर में आपके इंस्ट्रक्शंस इवैल्यूएट हो रहा है. दैट इज द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑर्डरिंग. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द इनपुट टू द कोड जनरेटर्स. ठीक है. इनपुट टू द कोड जनरेटर्स मीन्स अब आपकी सपोज दैट हम लोग इसमें टेक्निक में आते हैं कि सपोज दैट मैंने बोला कि इनपुट टू द कोड जनरेटर क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड. ठीक है. अब इंटरमीडिएट कोड देखो कितने तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, बहुत तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है. एज वी हैव सीन इन द वेरी प्रीवियसली इन द इंटरमीडिएट कोड इन अवर रेगुलर स्टडीज, दैट सपोज दैट कि इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्वाड्रुपल यूज कर सकते हो, ट्रिपल्स यूज करते हो, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स यूज करते हो, 3 एड्रेस कोड यूज कर सकते हो. ठीक है. दैट मीन्स आपके पास इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे बहुत सारे वेज हैं. अब आप क्या करो, उनमें से आप एक पर्टिकुलर वे सेलेक्ट करोगे और उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को आप किसको दोगे, आप दोगे किसको, कोड जनरेटर को. दैट मीन्स फर्स्ट इज how and what better choice you can make that this particular intermediate code representation will be beneficial to design a very good code generator. First thing this is okay. अब देखो ये लिखा हुआ है सारे इसमें. ठीक है. It has several choices: 3 address representation, virtual machine representation, linear representation such as postfix notations, graphical representation such as DAGs. ठीक है. मीन्स इनमें से आप कौन सी रिप्रेजेंटेशन यूज करोगे. तो अब 3 एड्रेस कोड हो गया, वर्चुअल मशीन रिप्रेजेंटेशन हो गया. ठीक है. और लीनियर रिप्रेजेंटेशन सच एज पोस्टफिक्स हम लोग देख चुके हैं. ठीक है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सच एज डैग. ठीक है. तो डैग का हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं. इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट डैग और वी आर गोइंग टू स्टडी डैग डीपली. ओके, सो now we will see this target program. Okay, what this target program is. देखो target program means कि अब आपने जो कोड जनरेटर डिजाइन कर रहे हो वो कोड जनरेटर किस मशीन के लिए डिजाइन कर रहे हो, है ना. सपोज दैट अगर आपका जो टारगेट प्रोग्राम जो आप डिजाइन कर रहे हो वो मशीन डिपेंडेंट है
तो मशीन डिपेंडेंट में क्या होता है कि मशीन डिपेंडेंट में कई तरह के आपके मशीन के आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सपोज दैट दो आर्किटेक्चर्स लिखे हुए हैं। एक आर्किटेक्चर है CISC और दूसरा है RISC। तो CISC क्या होता है, CISC के अंदर बहुत few number of registers are there and maximum 2 operands and variety of addressing modes are used, ठीक है। सिंपल सिंपल देख लो, इसमें वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस विद द साइड इफेक्ट्स, ठीक है। ये इसका सिंपल सा होता है CISC आर्किटेक्चर जो होता है, ठीक है। दूसरा होता है एक RISC आर्किटेक्चर। इसमें जो होता है इसमें रजिस्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 3 ऑपरेंड्स हो सकते हैं विद सिंपल एड्रेसिंग मोड्स, रिलेटिव सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स, ठीक है। सो दिस इज द केस। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग कि सपोज दैट आपने कोड जनरेटर डिजाइन किया, तो कोड जनरेटर कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब वो जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका क्या हो सकता है, एक तो एब्सोल्यूट मशीन कोड हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, आपका रिलोकेटेबल हो सकता है, रिलोकेटेबल मशीन कोड हो सकता है। और तीसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। तो सपोज दैट अब आपको इसमें से चॉइस बनानी है कि मुझे जो है एब्सोल्यूट चाहिए, रिलेटिव चाहिए कि असेंबली चाहिए। सपोज दैट आपने कहा कि एब्सोल्यूट, तो कोई आपसे पूछ सकता है भाई एब्सोल्यूट ही आपको क्यों चाहिए, तो आप आंसर दोगे सिंपली क्या कि भाई डायरेक्टली अगर मैं एब्सोल्यूट यूज कर रहा हूं तो एब्सोल्यूट विल गो डायरेक्टली इनटू द फिक्स लोकेशन। मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई तुम कौन सी मेमोरी लोकेशन में जाओ। लेकिन सपोज दैट अगर मैं रीलोकेटेबल यूज करता हूं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार कंपाइलर के फेजेस के बाद लिखा होता है लिंकर लोडर, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, रीलोकेटेबल कोड जनरेट होता है। और वो क्या करता है कि आपको सब प्रोग्राम्स को क्या करता है कि अलाउज द प्रोग्राम सब प्रोग्राम्स टू बी कंपाइल्ड सेपरेटली, ठीक है। और वो मतलब आप उसकी जो है लोकेशन को वेरी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द प्रोड्यूसिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि अगर आप सपोज दैट असेंबली लैंग्वेज में डिजाइन कर रहे हो, इट इज समवॉट लाइक मशीन लैंग्वेज। तो डिजाइनिंग अ असेंबली टारगेट प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज टारगेट प्रोग्राम इज मच इजियर टू डिजाइन देन द एब्सोल्यूट और रिलोकेटेबल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल रीजन, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई अलग से कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन मीन्स सपोज दैट आपके पास IR कोड आया, IR मीन इंटरमीडिएट कोड, आई विल यूज द वर्ड IR, ठीक है। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन वाला कोड आया। अब आप उसमें से इंस्ट्रक्शंस को सेलेक्ट करोगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आपको यूज करना है सो दैट आप उसको एग्जीक्यूट करो और किसी पर्टिकुलर टारगेट मशीन पे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है कि इसकी 3 कैटेगरीज होते हैं जिनके जो कैटेगरीज होती हैं वो IR की वो पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। और वो पर्टिकुलर फैक्टर्स क्या होते हैं, फर्स्ट इज लेवल ऑफ द IR, ठीक है। सेकंड इज द नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द जनरेट कोड। मींस आपका लेवल ऑफ IR क्या है, 2 लेवल 3 लेवल, ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। और दूसरा नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स क्या है, मतलब किस कौन सी मशीन के लिए आप डिजाइन करना चाहते हो, ठीक है। तीसरा होता है डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द जनरेटेड कोड। अब इसके बाद हम लोग को देखो फटाफट से देखते हैं जल्दी से लेवल्स में क्या होता है। अब देखो IR अगर सपोज दैट हाई लेवल का है, ठीक है, इट यूजेस द कोड टेम्पलेट टू ट्रांसलेट ईच IR स्टेटमेंट्स इनटू अ सीक्वेंस ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस। अगर वो हाई लेवल का है तो वो क्या करेगा, सीधे IR स्टेटमेंट्स को मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बट इट प्रोड्यूसेस पुअर कोड्स एंड नीड्स फर्दर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, डन है। अब सेकंड देखो, इफ IR इज ऑफ लोअर लेवल then it uses lower level information to generate more efficient code generation। means जो बेस्ट है हमारा वो कौन सा होता है, जो IR विथ लो लेवल, ठीक है। तो हम लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर क्या है कि इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, ठीक है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब कौन सा सबसे आपको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है वो हमको इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना है। इफ वी डू नॉट केयर अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द टारगेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देन इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर हमें सपोज दैट एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है कि टारगेट प्रोग्राम एफिशिएंट है कि नहीं है जो आउटपुट आ रहा है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, ठीक है। वो इजीली हो जाएगा, हम लोग सबसे उसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इंस्ट्रक्शन लो, रन कराओ,
हमें मतलब नहीं है कि एफिशिएंसी क्या आ रही है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। अब सपोज दैट ये लिखा हुआ x इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो इसमें लिखा हुआ एल डी मीन्स लोड, लोड y इंटू आर जीरो, एड z विथ आर जीरो एंड पुट इट इन आर जीरो, then st is store, then store r0 into x. So this is a kind of, it has a produces redundant load and store, ठीक है। अब देख लेना इसमें क्यों एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। अब सपोज दैट अगर मैं इसको बात करता हूं तो इसमें सिंपल सा है a इक्वल टू बी प्लस सी, डी इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब देखो इसके अंदर जो ये सपोज दैट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर सपोज दैट लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या है, स्टोर ए आर जीरो, लोड आर जीरो ए, बिल्कुल रिडंडेंट है। एक बार स्टोर कर रहा है, एक बार लोड कर रहा है, तो इट इज वेस्टिंग दी वी कैन से मेमोरी स्पेस, लाइक समथिंग लाइक दिस, ओके। सो वी विल से समथिंग लाइक दिस। So we will say like this, this is producing some redundant code. Now third one is the quality of the generated code is determined by its speed and size, ठीक है, by speed and size. Now just make me check. Okay, done. So the quality of the generated code is determined by the speed and size. अब देखो speed and size हम लोग इसमें कैसे चेक कर रहे हैं कि सपोज दैट ए इक्वल टू ए प्लस वन है, ठीक है। ए लोड आर जीरो टू ए एड आर जीरो जो है, ये जो आपका हैशटैग बना हुआ है, ठीक है, हैशटैग वन, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ अ लिटरल कांस्टेंट, दैट इज वन। अभी हम लोग देखेंगे इसमें आगे वाले लेक्चर्स में कि ये एड्रेस कोड कैसे लिखे हुए। तो ये आई एन सी इंक्रीमेंट वन, ठीक है। तो हाउ एफिशिएंटली योर कोड एग्जीक्यूट्स एंड हाउ स्मॉलर साइज इट कंटेन्स or it occupies is the designs the quality of the generated code, ठीक है। now the fourth one is the register allocation, ठीक है। अब रजिस्टर एलोकेशन क्या है आपका, रजिस्टर एलोकेशन है सपोज दैट इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्विंग रजिस्टर ऑपरेंड्स आर यूजुअली शॉर्टर एंड फास्टर देन द इन्वॉल्विंग ऑपरेंड्स इन द मेमोरी। अब देखो अगर सपोज दैट अगर आप मेमोरी में रिजाइड करा के कोई वर्क कराओगे दैट इज लेस एफिशिएंट, लेकिन अगर आप रजिस्टर्स में वर्क कराओगे तो एक तो आप रजिस्टर्स बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, स्मॉलर साइज होते हैं। और दूसरा कि आप सपोज दैट अगर उसमें लोड करते हो, स्टोर करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, वो एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये इसकी टू सब प्रॉब्लम्स को इसको रिजॉल्व करता है। फर्स्ट आपकी जो सब प्रॉब्लम होती है, एक तो रजिस्टर एलोकेशन और रजिस्टर असाइनमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि वी विल सेलेक्ट द सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट विल रिजाइड, है ना। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सी वैल्यूज़ है जो कि रजिस्टर में एलोकेट करेंगे। दूसरा होता है रजिस्टर असाइनमेंट का, सेलेक्ट स्पेसिफिक रजिस्टर दैट अ वेरिएबल विल रिजाइड इन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इम्पोज्ड बाय द हार्डवेयर आर्किटेक्चर, देखो सपोज दैट मैंने आपने बोला कि भाई मैं रजिस्टर्स वाला यूज़ करना चाहता हूँ, बट अगर आर्किटेक्चर्स हैं, आर्किटेक्चर्स की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, तो वो आर्किटेक्चर्स के लिमिटेशन की वजह से उसमें कॉम्प्लिकेशंस डिज़ाइन हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द अनदर केस, यू कैन जस्ट सी दिस एग्जांपल, divisions and all these things. This will be more elaborated in our next topic, that is the address statements. This is the 3 address statement written over there, okay. Optimal machine code sequences is written over there. Now fifth one is the evaluation order, okay. The important thing is the order in which computations are performed can affect the efficiency of the target code. मीन सपोज दैट आपने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिया, आपने उसको एग्जीक्यूट कराना शुरू किया, आपने कहा यार इससे रिजल्ट नहीं आ पा रहा, अच्छा तो आप क्या करो, एक थोड़ा सा चेंज करके देखो। और वो चेंज क्या हो सकता है, उसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दो, है ना। तो ऑर्डरिंग मीन सपोज दैट ए बी सी, पहले ए इवेल्युएट हो रहा है, फिर बी इवेल्युएट हो रहा है, फिर सी इवेल्युएट हो रहा है। अगर उससे सपोज दैट आपका जो टारगेट प्रोग्राम है वो अच्छा डिज़ाइन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, उसकी ऑर्डरिंग चेंज करो, उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके उसमें जो आउटपुट आ रहा है उसमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। एफिशिएंसी में इफेक्ट होना चाहिए लेकिन आउटपुट में नहीं। तो दैट मीन्स अगर सपोज दैट मैं चेंज कर देता हूँ, बी पहले इवेल्युएट करता हूँ, फिर ए, फिर सी, और अगर सपोज दैट इससे मेरा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, तो मैं क्या कहता हूँ, आई हैव जस्ट चेंज द ऑर्डर of the evaluation, okay. So this is a simple thing. I will just design with this. Now see this, one example is written over there. Suppose that I have I'm just taking this,
this example. ओके, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इंटू ई। तो इसका एक 3 एड्रेस कोड लिख दिया यहाँ पे, देखो, ठीक है। T1 इक्वल टू ए प्लस बी, T2 इक्वल टू सी प्लस डी, T3 इक्वल टू ई स्टार T2 एंड T4 इक्वल टू T1 माइनस T3। ये जो है इसका मैंने क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है आपका एक मशीन कोड, है ना। तो इट इज़ समथिंग लाइक, पूरा आप लोग इसको एक बार रीड करो, ठीक है। रीड करने पे आप लोग यू विल फाइंड दैट समथिंग लाइक मूव R0A, ऐड R0B, मीन्स पूरा एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब सपोज दैट मैं इसमें रीऑर्डरिंग कर रहा हूँ, देखो ये रीऑर्डरिंग लिखी हुई है। तो व्हाट दिस रीऑर्डरिंग इज, इसमें इसने क्या किया, इट कंप्यूटेड T2 फर्स्ट, है ना, C प्लस डी, देन T3 C इंटू T2, ठीक है, और उसके बाद T4 इक्वल टू T1 माइनस T3, T1 इक्वल टू ए प्लस बी इज ऑल्सो देयर, ठीक है। दैट मीन्स सी दिस 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सेम है, इसमें भी 4 ही स्टेटमेंट्स है, लेकिन सिंपली मैंने क्या किया, इसके ऑर्डर को, एवोल्यूशन को चेंज कर दिया। और जब इस ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन को चेंज किया तो इससे जो मेरा टारगेट प्रोग्राम आया वो ये आया। एंड यू विल सी दैट दिस टारगेट प्रोग्राम is much efficient than this previous one टारगेट प्रोग्राम। ओके, इस वाले से ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, है ना, बिकॉज इसमें कम आपके जो है ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, तो कम कॉम्प्लिकेटेड है और इजीली एग्जीक्यूट करेगा। सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस आई थिंक this covered whole topic, that is the code generator, code generation, introduction, and the issues we have in the code generator. So thank you for this, for just listening to me, and I hope you just understood these topics. It's time to say goodbye. Okay, thank you once again. Stay home, stay safe. Goodbye.